برس بعد لاہور جمخانہ الیکشن کا میدان سج گیا. پولنگ جاری. کامران لاشاری گروپ اور میاں مصباح الرحمان گروپ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع. آزاد امیدوار قمر خان بابی بھی میدان میں. جمخانہ الیکشن 36 امیدواروں میں مقابلہ. 5445 ووٹرز ووٹ کاسٹ کریں گے. ایم این اے پرویز ملک اور سیکرٹری کو آپریٹو شہریار سلطان بھی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گئے. میاں مصباح الرحمان گروپ کی جانب سے میاں پرویز بندارا، آغا علی امام، پرویز بشیر آغا، سرمد ندیم، شفقت رانا، طارق حمید، عامر افتخار میں مقابلہ. کامران لاشاری گروپ کے شوکت جاوید، سمیع الرحمان، جواد سعادت خان، علی رازق، میاں جاوید ظہور، خواجہ عمران زبیر اور احسن سعید بھی میدان میں. شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار. مطلع ابر آلود. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی میں قدرے اضافہ. سرکاری محکمے 1.5 کروڑ روپے کے ٹوکن ٹیکس کے نادہندہ. پنجاب پولیس کی 1121 گاڑیاں ٹوکن ٹیکس کی ڈیفالٹر. ڈائریکٹر ایکسائز کا 2431 گاڑیوں کے ٹیکس کی فوری ادائیگی کے لیے مراسلہ. 12 سال سے کمرشل فیس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سفارشات پر 8 ارب روپے کی ریکوری کا فیصلہ. نادہندہ املاک کو سیل کرنے کا حکم. ایل ڈی اے کا ملتان روڈ ہنجروال میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن. بھاری مشینری سے پلازا مسمار کر دیا. رجسٹرار ہائی کورٹ کا عدالت عالیہ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ. تمام گیٹس پر سیکیورٹی انتظامات چیک کیے. سیکیورٹی سے متعلق سائلین کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. رجسٹرار ہائی کورٹ. بھٹا مزدور بازیابی کیس. ویلف نے خواتین اور بچوں سمیت 29 بھٹا مزدوروں کو بازیاب کرا کر عدالت میں پیش کر دیا. عدالت کا مزدوروں کی رہائی کا حکم. حکمران دھمکیاں دے رہے ہیں. آئی جی پنجاب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. شوکت بسرا کی آئی جی آفس کے باہر لاہور نیوز سے گفتگو. کہا شہید کارکنوں کی قانونی جنگ لڑ رہا ہوں. اسپتالوں میں معیاری سہولتوں کی فراہمی مریضوں کا حق ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس. عوام کو طبی سہولتوں کی فراہمی کے پروگرامز کا جائزہ. شہر میں ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے بڑا منصوبہ تیار. لاہور اربن ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان 2030 پر عمل درآمد شروع. ٹھوکر نیاز بیگ، گجو ماتا اور شاہدرہ میں بین الاقوامی معیار کے 3 بس ٹرمینلز تعمیر کیے جائیں گے. واسا کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا. 30 سال پرانا ریکارڈ ردی کی نظر. ضائع کیے گئے ریکارڈ میں شعبہ فائنانس، ریونیو اور انکوائریوں کے اہم شواہد شامل. میو ہسپتال میں جدید سہولیات میسر کرنے کا منصوبہ تیار. 13 سال سے التوا کا شکار سرجیکل وارڈ کی گونج ایوانوں میں پھر سنی گئی. ماڈولر آپریشن تھیٹرز، انسولیشن وارڈ سمیت دیگر جدید سہولیات میسر ہوں گی. آئل ٹرین منصوبے کے لیے خریدی گئی اراضی کے 455 مالکان کئی ماہ سے ادائیگیوں کے منتظر. 5.5 ارب روپے سے زائد کے بقایا جات واجب الادا. نیب
लाहौर की कार्रवाई। 93 करोड़ का बैंक डिफॉल्टर गिरफ्तार। मुलजिम शबीर ने 2009 में निजी बैंक से कर्जा लिया। मुलजिम पर 35 मिलियन के बोगस चेक जमा करवाने का भी इल्जाम। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है फूड अथॉरिटी के लिए कोई नो गो एरिया नहीं। सफाई के इंतजामात चेक करने के लिए तजुर्बाकार होना जरूरी नहीं। किसी को शिकायत हो तो हमें बताएं। बीबी पाक दामन के 3 रोजा उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से आए ज़ायरीन की दरबार पर हाजिरी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली 10 परवाज़ें मनसूख। मुतअद्दिद ताख़ीर का शिकार। फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिरों को परेशानी। और नेशनल पोलो चैंपियनशिप का 8 मार्च से एबिक पोलो ग्राउंड में आगाज। 5 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर जिमखाना इंतखाबात की। आपको बताएं कि बॉलिंग का अमल शुरू हो चुका है। कामरान लाचारी ग्रुप और मियां मिसबाह रहमान ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। कमर खान बॉबी भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। इलेक्शन में 36 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है और लाहौर जिमखाना के 5445 मेंबरान वोट कास्ट कर सकेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। हसन, ये बताइएगा कि सुबह से पोलिंग का अमल शुरू है, अब तक बताइएगा कि टर्नओवर कैसा है? जी बिल्कुल, सुबह से जो है पोलिंग का अमल जारी है और अब तक जो है वो 200 से ज्यादा जो है वोट कास्ट हो चुके हैं। जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो कमर खान बोबी हैं उनके साथ साथ जो है वाजिद अजीज खान ये भी मजबूत उम्मीदवार जो है सामने आ रहे हैं। जबकि इनके साथ साथ मियां मिसबाह रहमान और कामरान लाचारी ग्रुप के जो मेंबरान हैं उनके दरमियान भी जो है कांटेदार मुकाबला है। और इस वक्त जो है काफी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, मेंबरान लाहौर जिमखाना के मेंबरान हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। खासतौर पर मेंबरान पंजाब असम्बली है, वो भी जो है एक तरफ इजलास का है तो दूसरी जानिब जो है लाहौर जिमखाने का इंतखाब भी है। यहाँ पर जो है इंतखाब में वो बकाया तौर पर इधर वोट कास्ट करने भी आ रहे हैं। अब तक जो है मेंबरान असम्बली के साथ साथ जो है बाकी जो मेंबरान असम्बली हैं वो भी वोट कास्ट करने आ रहे हैं। खासतौर पर कुछ ही देर बाद जो है सरदार याद सादिक जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो भी यहाँ पे वोट कास्ट करने आएंगे। उस हवाले से उनका रूट लगा दिया गया है। और उनके साथ साथ ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है डॉक्टर असद असलम और सलमान सदीक, तस्रीम नूरानी, हमीदुद्दीन समेत जो है दीगर बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो है वो यहाँ पर आए, उन्होंने वोट कास्ट किया। उनके साथ साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ जो है उन्होंने भी वोट कास्ट किया। और इसके अलावा जो है दीगर जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं और रिटायर्ड जजेस हैं वो भी उन्होंने भी वोट कास्ट किया। और यहाँ पे जो है एक गहमा गहमी सी सूरत है और बड़ी खूबसूरत है ये। 3 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इसी वजह से जो है इलेक्शन 3 साल बाद हो रहे हैं। और आज जो है दूर दराज जो है जहाँ पर ब्यूरोक्रेट जो मुख्तलिफ जगह पे पोस्टिंग होगी वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। बिजनेसमैन भी जो आ रहे हैं इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, यहाँ तक कि पेशावर से भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स का कहना था कि हम खसूसी तौर पे आज छुट्टी नहीं थी, इस वजह से हम खसूसी तौर पर जो है ये वोट कास्ट करने के लिए लाहौर जिमखाना के लिए लाहौर में आए हैं। लेकिन इंतजामिया को चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ये जिमखाना है ये छुट्टी वाले दिन करवाते ताकि जो मेंबरान असम्बली है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर आ सकते। लेकिन अब ये है सिलवट जारी है। अब तक 200 के करीब जो है 200 से ज्यादा जो है वो वोट कास्ट हो चुका है। जबकि अभी जो है मेंबरान असम्बली आएंगे 5445 टोटल वोटर है। अब देखते हैं कि ये कितनी स्पीड कितनी देर में पकड़ते हैं। उम्मीद है कि अभी बात हुई है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि कुछ देर जो है हम इलेक्शन जो वोट 5 बजे का टाइम है इसमें मजीद कुछ जो है इजाफा करें, 1 घंटे का इजाफा जो है देखने में आएगा। क्योंकि आज छुट्टी भी नहीं है, इसी वजह से जो लाहौर जिमखाना का इंतखाब है 5445 मेंबरान है और अभी जो वोट कम है इसलिए इसको बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 बजे दफातर बंद होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो, उसके अलावा बिजनेसमैन जो है उनके भी शाम को जो है वो थोड़ा सा मामूल के हद से होते हैं, वो शाम को जो है वोट कास्ट करने आ सकेंगे। जी हसन रजा, जैसा कि वोटिंग का सिलसिला जारी है, ये बताइएगा कि दोनों ग्रुप्स के कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है अब तक? जी दोनों ग्रुपों के जो मेंबरान हैं वो अब तक जो देखने में आया टोटल जो 5445 में से अब तक तकरीबन 200 से ज्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं। इसमें जो मजदूर मेंबरान हैं उन्होंने भी वोट कास्ट किए, वो भी उनके लिए खसूसी तौर पर यहाँ पे व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है।
उन पे खुसूसी तौर पर उनको ले जाया जा रहा है। जबकि अगर देखने में आए तो इस वक्त कुछ देर पहले जो था वो 117 वोट कास्ट किए गए थे, अब से कोई आधा पौना घंटा पहले, जिसमें ये चीज सामने आ रही थी कि 70% वोट कामरान लशारी के थे और उसमें जो बाकी जो थे 30% जो वो थे मियां मिसबाह रहमान ग्रुप को कुछ आजाद उम्मीदवार। लेकिन अब जो है आजाद उम्मीदवार कमर खान बोबी के साथ साथ जो है बाकी जो आजाद उम्मीदवार हैं, जिसमें वाजिद अजीज खान और समेत दीगर जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में एक्टिव हो गए हैं और वो भी उनकी जानिब से भी जो बकाया तौर पर मुहिम कैंपेन थी, उनके भी जो अकारे भी यहाँ पर आ गए, साबिक ब्यूरो केस भी यहाँ पर आ गए। खासतौर पर यहाँ पे चीज देखने में आई है जो इस टाइम मौजूदा स्पेशल ब्रांच के अफसरान हैं और उसके अलावा खासतौर पर जो पंजाब पुलिस के अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो बकाया तौर पे इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, वो मुहिम करते नजर आ रहे हैं लाहौर जिमखाना की। उनका ये कहना है कि लाहौर जिमखाने को खूबसूरत बनाने के लिए अब नए चेहरे को लाना होगा, क्योंकि वो कामरान लशारी ब्यूरोक्रेट है, इसलिए उनकी मुहिम चलाने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेट उनसे जो आगे सर्वत ब्यूरोक्रेट है वो भी मैदान में उतरे हुए, वो भी यहाँ पे उनकी कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। 3.25 साल के बाद लाहौर जिमखाना इलेक्शन का मैदान सजा है, पोलिंग जारी है। आप हमें अपडेट कर रहे थे हसन रजा, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि एडवाइजर टू वजीर आला राना मकबूल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जहांगीर की सूबाई वजीर राना मशहूद के घर आमद, राना मशहूद की वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया है। आपको बताएं कि एडवाइजर टू वजीर आला राना मकबूल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जहांगीर की सूबाई वजीर राना मशहूद के घर आमद है और राना मशहूद की वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत भी किया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हाफिज नदीम। जी हाफिज, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, हफ्ते की सुबह करीबन 8 बजे राना मशहूद अहमद खान साहब की वालिदा इंतकाल कर गई थी। उसके बाद दीगर सियासी और समाजी शख्सियात का राना मशहूद साहब के घर में आमद की सिलसिला जारी है और आज जो है चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन राजा कमर इस्लाम, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जहांगीर और एडवाइजर टू वजीर आला राना मकबूल और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात का सिलसिला अभी तक जारी है। और इस वक्त मिनिस्टर यावर महकमा जंगलात भी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और सियासी शख्सियात का यहाँ पे उनका आना जारी है और वो राना साहब से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और जो है वो काफी ज्यादा उनकी वालिदा के इंतकाल पे इजहार अफसोस भी कर रहे हैं। और अभी तक भी जो कई लोगों का जो है आमद का सिलसिला जारी है और मजीद भी यही बताया जा रहा है कि MPA MNS के भी चांसेस हैं, वो लोग भी यहाँ पे आएंगे और इजहार अफसोस करेंगे। हाफिज नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में हल्की हल्की बूंदाबांदी ने आती गर्मी को स्टॉप लगा दिया है। इस वक्त बादलों का राज है, जबकि वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। शहर में हल्की हल्की बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया है। यकीनन मौसम खुशगवार हो गया है। आज सुबह हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम, उनसे बात करेंगे। निगार, बताइएगा कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और मौसम का अहवाल क्या है? निगार खुरम से भी बात करेंगे। आपको बताएं कि शहर में हल्की हल्की बूंदाबांदी ने आती गर्मी को स्टॉप लगा दिया है। बादलों का राज है, जबकि वक्फे से जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि आज सुबह ही जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई और मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी की आती हुई ये जो है वो आता हुआ मौसम और इसको स्टॉप लगाया है। बारिश ने सुबह सवेरे हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई और मौसम खुशगवार हो गया है। इसी पे बात करेंगे। निगार खुरम मौजूद होंगी हमारे साथ एबिट रोड से, जबकि मोहम्मद अवैस साथ मौजूद होंगे महकमा मौसमियात के दफ्तर से। निगार, आपसे जानेंगे, फरमाइएगा कि आज मौसम कैसा है? शहरी खुश नजर आते हैं? जी बिल्कुल, कल रात होने वाली बूंदाबांदी जो है वो आज अभी तक जारी है। इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। सूरज की आंख मिचौली भी जारी है। कभी जो है वो गहरे बादल छा जाते हैं और कभी एकदम से हल्की हल्की जो है वो धूप निकल आती है। इस वक्त भी बहुत ठंडी हवा जो है वो चल रही है। मैं तो इस वक्त टॉप फ्लोर पर हूँ अपने ऑफिस के और यहाँ से मुझे पूरा शहर जो है वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे धुलकर जो है पूरे शहर का चेहरा जो है वो निखर गया है। इर्द गिर्द मुझे जो है वो परिंदे उड़ते चहचहाते नजर आ रहे हैं, जिनमें चील हैं, कबूतर हैं और छतों पर बहुत छोटे छोटे मासूम खूबसूरत बच्चे जो हैं वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने और भी ज़्यादा जो इस मौसम की खूबसूरती है उसको बढ़ा दिया है। ठंडी ठंडी हवा में जो है वो इस बूंदाबांदी से जो है खनकी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से एक ठंडक का एहसास भी हो रहा है। क्योंकि मैं तो आज स्वेटर नहीं पहनकर आई और बाकी शहरी भी यकीनन नहीं पहनकर आए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है एकदम से ऐसे लग रहा है कि फिर सर्दी आ गई है। जाता हुआ जो सर्दी का मौसम था वो एक बार फिर पलट आया है। तो लाहौरी इस मौसम को, इस ठंडक का जो है मज़ीद मज़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे तो तवील गर्मी जो है
वही भुगतनी है और उस गर्मी की वजह से जो है होने वाले मसाइल, लोड शेडिंग जो है, उसी का अजाब जो है जो आवाम को जो है वो सहना पड़ना है। तो जितना हो सके इस मौसम को जो है वो मैं तो खुद बहुत इंजॉय कर रही हूँ, आप भी ज़रूर इसको इंजॉय करें और लोग जो है वो भी हमें इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। मौसम खुशगवार हो गया है और निगार यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे इस मौसम को। ऑफिस की छत पर रुख करेंगे अवैस का, जो कि मौजूद है महकमा मौसमियात के दफ्तर में, उनसे भी जानेंगे। अवैस, बताइएगा कि मौसम तो खुशगवार है, महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, सुबह से जो मौसम है ये खुशगवार है। जो सूरज है वो कहीं बादलों की ओट में जाकर छुप गया है, जिसकी वजह से हल्की फुल्की जो है वो रिमझिम भी जारी है। बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज खान, उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी चीफ साहब, बताइएगा बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी, जिस तरह हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 2-3 दिन पहले फोरकास्ट कर चुके थे कि मुल्क में इस तरह बारिश देने वाला सिस्टम आएगा, वो रात से तकरीबन बारिश दे रहे हैं और आगे आइंदा 24 से 36 घंटों तक मज़ीद जो पंजाब के प्लान एरियाज़ है उसमें ज़्यादातर जो मौसम रहेगा वो पार्शली क्लाउडी टाइप और कहीं साथ साथ लाइट रेन की एक्टिविटी वो कंटिन्यू रहेगी। खान साहब, दर्जा हरारत में भी कोई कमी आएगी? डेफिनेटली क्लाउडी वेदर में टेम्परेचर डाउन रहेगा, लेकिन जो ही वेदर सिस्टम वाइंड अप करेगा तो दोबारा फिर टेम्परेचर राइज़ करना शुरू है। अभी 1-2 दिन तक टेम्परेचर में कमी आएगी और इसमें थोड़ी सी जो गर्मी चल रही थी या शुरू हो गई थी, अब स्लाइटली उसमें गैप आएगा। जी बिल्कुल, ये थे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज खान, जिनका शहरियों को ये कहना है, शहरियों के लिए खुशखबरी है कि जो रिमझिम है ये जारी रहेगी और जो गर्मी है उसमें भी कमी आएगी, दर्जा हरारत में कमी आएगी। जी बिल्कुल, आती गर्मी को स्टॉप लग गया है और आइंदा आने वाले दिनों में जो है ये रिमझिम जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे, और निगार खुरम आपने अपडेट किया। यकीनन मौसम अच्छा हो गया है और सुबह सवेरे से होने वाली इस बूंदाबांदी ने मौसम के साथ साथ शहरियों के मूड भी अच्छे कर दिए हैं। मौसम ने करवट बदली और बारिश की बूंदों ने दिलाया एक खुशगवार एहसास। लाहौर के मौसम की आज क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा मुख्तार से। अक्सा, बताइएगा मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम आज बहुत ज़्यादा खुशगवार है। बारिश का सिलसिला जो है वो रात से शुरू हो चुका है और बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम बहुत सुहाना हो गया है। एक प्लेजेंट इफेक्ट आ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा धूप निकलना शुरू हो गई थी और शहरी जो है बहुत मायूसी का शिकार भी हो गए थे कि अब गर्मियाँ आ गई हैं। लेकिन आज मौसम ने हमें एक सरप्राइज़ दिया है और बारिश जो है वो हो रही है सुबह से। दर्जा हरारत की मैं बात करूँ तो आज महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर शहर का दर्जा हरारत 23, जबकि कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ हवा भी चलती रहेगी और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवा चलेगी। हवा में नमी का तनासुब 69% है यहाँ पर, और लेकिन ये है कि बारिश का जो सिलसिला है अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। यूं ही हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी, बादल छाए रहेंगे, मौसम में क्लाउडी, पार्शली क्लाउडी भी रह सकता है। और ये है कि ये बारिश का जो सिलसिला है ये मजीद 36 घंटे तक भी एक्सटेंड हो सकता है और शहरी जो है इसको भरपूर इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से शहरियों को बहुत ज़्यादा शिकायत ये आ रही थी कि गर्मी बहुत जल्दी आ गई है भाई, क्योंकि अब सर्दियां बिल्कुल चली गई हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम वैसे भी लाहौरी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उनका फेवरेट मौसम होता है। लेकिन जब बारिश हो जाए तो फिर इससे ज़्यादा बेहतर मौसम और कौन सा हो सकता है। यहाँ पे मैं इस वक्त जिनाह पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सब्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा खिलकर सामने आ रहा है, तरोताज़ा लग रहा है, फ़िज़ा जो है वो निखरी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत रोमांटिक वेदर है और इस वेदर को जो है लाहौरी भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। शहरी मौसम को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। आप हमें अपडेट कर रही थी अक्सा मुख्तार, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि FIA को अस्पताल में जाली अद्वियात फराहम करने वाली कंपनी के खिलाफ अभी तक अंदराजे मुकदमा की इजाजत नहीं मिली है। FIA ने मुकदमे के लिए प्रोविंशियल ड्रग अथॉरिटी को खत भी लिखा था। ड्रग कोर्ट ने इजाजत न देने पर चेयरमैन अथॉरिटी को तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल सैयद से। जी राहिल, बताइएगा कि क्यों मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा? जी मैं आपको बताता चलूँ, जो प्रोविजनल ड्रग अथॉरिटी कंट्रोल बोर्ड है वो तो ऐसा लगता है जैसे मुबैना तौर पर जो है जाली अद्वियात बनाने वालों की सरपरस्ती कर रहा है, क्योंकि जब भी FIA उनके मुकदमे के लिए इंदराज के लिए दरख्वास्त देती है और दबा के बैठ जाती है और उस वाले से उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता। इससे पहले भी मैं कैलिक्स एक फार्मा थी जो जाली अद्वियात अस्पतालों में फराम करी थी, जिस पर FIA ने जो लेबॉर्ट्री उनकी अद्वियात भिजवाई तो उसमें ये साबित हो गया कि ये अद्वियात जो है गैर मियारी और जाली हैं और नाकिस हैं, जिस पर उन्होंने पंजाब प्रोविजनल अथॉरिटी कंट्रोल बोर्ड को उन्होंने लेटर भी लिखा कि हमें इंदराज मुकदमा की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मालकान हैं जो 2 कंपनी
है जिसमें हमायूं है और रियासत भट्टी है, उसके खिलाफ भी मुकदमे की इजाज़त दी जाए, लेकिन ताहर वो अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी तक स्कैंडल में भी जो कंट्रोल बोर्ड है उसने अभी तक डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए FIA को इजाज़त नहीं दी है, जिस पे FIA ने ड्रग कंट्रोल को जो अथॉरिटी है उसको तमाम को जजेस साहबान को सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने कहा है कि जो सेक्रेटरी है, जो कंट्रोल बोर्ड का जो सेक्रेटरी है उसे फौरी तौर पर तलब किया गया है ताकि उससे मामला पूछे जा सके कि क्यों वो माफिया के खिलाफ जो अभी तक इंदराज मुकदमा की इजाज़त नहीं दे रहा। जी बहुत शुक्रिया राहिल सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज बरतानिया के बानी डायरेक्टर डॉक्टर फरहान निज़ामी की मुलाकात हुई है। पंजाब हुकूमत और ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज बरतानिया के माबैन कुरान और सुन्नत और इस्लामी तालीमात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का इजलास अरकान की ऐवान से अदम दिलचस्पी बरकरार है। इजलास में सिर्फ 30 अरकान मौजूद हैं। स्पीकर ने 30 अरकान की मौजूदगी में ही असेंबली का इजलास शुरू करवा दिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अखलाक अहमद बाजवा से। जी अखलाक, बताइएगा कि ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, ये हस्ब रवायत ही रही है कि पंजाब असेंबली में अरकान की अदम दिलचस्पी जो है वो मुसलसल बरकरार है और आज 30 अरकान से तो स्पीकर ने पंजाब असेंबली का इजलास शुरू करवा दिया। अब कुछ तादाद थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है। अगर अब भी कोई रुकन ये कोरम की निशानदेही करते तो ये हुकूमत के लिए मसाइल दरपेश हो सकती है। तो ये अब पंजाब असेंबली जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी असेंबली है, उसमें जो अरकान की जो तादाद है वो 371 के करीब है, लेकिन जो हाजिरी लगती है वो तकरीबन 150-200 के करीब लगती है। लेकिन जो मौजूद होते हैं ईवान में अरकान वो इंतहाई कम होते हैं। उनकी कभी भी जो तादाद है वो सिर्फ उसी वक्त बढ़ती है जब हुकूमत ने कानून साजी करनी होती है। उसके अलावा किसी किस्म के जो अरकान है। बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ बात करेंगे वासा की। आपको बताएं कि वासा लाहौर बजट खसारे का शिकार हो गया है। महकमा खजाना ने सिर्फ फरवरी के खसारे को पूरा करने के लिए 18 करोड़ 30 लाख रुपए इमदादी ग्रांट के तौर पर फराहम कर दिए हैं। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फारूक अहमद बोदला से। फारूक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वासा लाहौर मालियाती खसारे का शिकार हो चुका है और महकमा खजाना ने माह फरवरी का खसारा पूरा करने के लिए वासा लाहौर के लिए 18 करोड़ 30 लाख की रकम जारी कर दी है और ये जो रकम है इमदादी ग्रांट के तौर पर फराहम की गई है। महकमा अर्बन डेवलपमेंट ने इस मालियाती खसारे को पूरा करने के लिए महकमा खजाना को एक समरी अरसाल की थी और मुतालबा किया था कि ये जो मालियाती खसारा है फरवरी के महीने का वासा लाहौर का वो पूरा करने के लिए रकम जारी की जाए। और इस हवाले से वासा के जो MD हैं उनके स्पेशल ड्राइंग अकाउंट में ये जो रकम मुंतकिल कर दी है ताकि वो हस्ब ज़रूरत इसको निकलवा सकें। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने तमाम महकमा जात को ये हिदायत जारी की थी कि वो अपने वसायल से अपने मालियाती खसारे को पूरा करें, लेकिन उनकी हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया गया और एक बार फिर कौमी ख़जाने पर महकमा ख़जाना पर एक बोझ बनकर वासा लाहौर आया है और उसने ये मुतालबा किया है और लेकिन ये फंड्स अगर से जारी कर दिए लेकिन उनकी हिदायत पर अमल दरामद बजट खसारे का शिकार हो गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे फारूक बोदला, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 12 सालों से कमर्शियल फीस ना दहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है। किसने कितने पैसे नहीं दिए, अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात का अक्स सिर्फ लाहौर न्यूज पर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात पर 8 अरब रुपए की रिकवरी का फैसला। डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन और रिकवरी इकबाल फरीद ने नादहिंदगान को सील करके अहकामात जारी कर दिए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन। जी शेख ज़ैन, बताइएगा कि 12 सालों से कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ अब घेरा तंग किया जाएगा। जी मुनीज़े, ये मामला है जो LDA का शोबा कमर्शलाइजेशन है उसकी मुबैना मिली भगत का और नाअहली का और गफलत का कि गुज़िश्ता 12 सालों से लाहौर की कई ऐसी इमारतें हैं जिनसे कमर्शियल फ़ीस अदा नहीं की, जिसके बाद जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ उठाया, जिसके बाद अब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा कमर्शलाइजेशन की जानिब से इस चीज़ का फ़ैसला किया गया है कि वो इमारतें जो कि पिछले गुज़िश्ता 12 सालों से LDA की कमर्शियल फ़ीस की मद में नादहिंदा हैं उनसे अब इस सिलसिले में रिकवरी की जाए। इब्तदाई तौर पर जो लिस्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक ये 293 इमारतें हैं जिन्होंने LDA के 8 अरब रुपए से ज़ायद के जो रकम है वो अभी तक अदा नहीं की, जिसकी वजह से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को हर साल इस सालाना और मुस्तकिल कमर्शलाइजेशन फ़ीस की मद में खसारे का सामना करना पड़ता है। तो अब इस चीज़ का फ़ैसला किया गया है
के सिलसिले में ये जो रिकवरी है इसके काम को मुमकिन बनाया जाए और डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन LDA फरीद इकबाल की हदायत पर 3 टीमें तश्कील दे दी गई। वाजिबुल अदा हैं, बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये सिर्फ बातों की ही बात है। आपको बताएं कि PIA की कराची से लाहौर आने वाली परवाज में खाने में से कीड़ा बरामद हुआ है। मामले पर मुसाफिर का दौरान परवाज शोर शराबा, इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। PIA की कराची से लाहौर आने वाली परवाज में खाने से कीड़ा बरामद हुआ। मामले पर मुसाफिर का दौरान परवाज शोर शराबा, इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। आपको बताएं कि मुसाफिर का दौरान परवाज शदीद शोर शराबा और एहतजाज। PIA की ये कराची से लाहौर आने वाली परवाज है जहां खाने से कीड़ा बरामद हुआ है। खबरें मजीद में शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। लाहौर जिमखाना के इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी, 36 उम्मीदवारों में मुकाबला। एडवाइजर 2 वजीर आला राना मकबूल की सूबाई वजीर राना मशहूद के घर आमद, वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वजीर आला पंजाब से डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज बरतानिया डॉक्टर फरहान निजामी की मुलाकात। हाईकोर्ट शैडो कैबिनेट की तश्कील के लिए दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज। तेईस भट्टा मजदूर मालिक के कैद से बाजियाब, हाईकोर्ट का मजदूरों को रिहा करने का हुक्म। पंजाब असम्बली का इजलास, अराकीन की असम्बली से अदम दिलचस्पी, सिर्फ 30 अराकीन ऐवान में मौजूद। आपको बताएं कि साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा इस वक्त जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तो उसकी खालिसन ज़िम्मेदारी खादिम आला शहबाज शरीफ पर होगी, सनाउल्लाह वज़ीर कानून पर होगी, और जब हमजा शरीफ साहब फर्जमंद शहबाज शरीफ पर होगी। और वो इस अगर मुझे कल कर दिया गया तो वो कातिल होंगे। सरदार लतीफ खोसा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मामलात को बेहतर बनाने के लिए मजीद इकदाम किए जाने चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यंग लॉयर्स फोरम के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। सेशन कोर्ट, ऐवान अदल और सिविल कोर्ट में इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी गई है। सदर की नशिस्त पर 5 और सेक्रेटरी की सीट पर 2 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरशद अली। अरशद, बताइएगा कि यंग लॉयर्स फोरम के इंतखाबात की गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच गई है। जी बिल्कुल, लाहौर बार एसोसिएशन और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के बाद अब यंग लॉयर्स जो हैं जिनकी तादाद 6000 के करीब है ज़िला लाहौर के, उन्होंने अपने इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया गया है। ये 1992 से चलता आ रहा है कि लेकिन इसका किसी सीट के साथ ऑफिशियली के साथ किसी बार के साथ इल्हाक नहीं है। लेकिन यंग लॉयर्स जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है इंतखाबात करवाते हैं। इस वक्त जो है गहमा गहमी इस इलेक्शन की अरूज पर पहुँच चुकी है। तमाम तर कैंडिडेट जो है अपने अपने उम्मीदवार की सपोर्ट के लिए जो है उसके वोट मांग रहे हैं। 5 कैंडिडेट जो है सदर की नशिस्त पर बर्जमान है और इसके साथ साथ 2 सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। इस वक्त सेक्रेटरी के कैंडिडेट चौधरी जो है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, चौधरी जुनेद अरशद मेरे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप कैंडिडेट हैं यंग लॉयर्स के, क्या आपका एजेंडा है, किस एजेंडे के तहत आप इलेक्शन लेके चल रहे हैं? जी, मैं अगर मुंतखब होता हूँ, यंग लॉयर्स मुझे इज़्ज़त देते हैं, तो मेरा पहला एजेंडा ये है कि जो हमारी इंटीमेशन जमा होती है यंग लॉयर्स की, वो 6 महीने वो लाहौर बार में जब लाइसेंस बनता है 6 महीने उनके कार्ड दिए जाते हैं, जो हाई कोर्ट के लाइसेंस में जाके उनको 6 महीने एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। मेरी कोशिश ये होगी अगर मुझे यंग लॉयर्स इज़्ज़त देते हैं, मेरी कोशिश ये होगी कि यंग लॉयर्स को जो है जल्द अज जल्द जो है उनका इल्हाक जो है लाहौर हाई कोर्ट का उनको लाइसेंस दिलवाया जाए। इस तरह के मजीद उनका स्टेप्स है कि मेरा ये दावा है, मैं उसके ऊपर जब मुझे इलेक्ट करेंगे मैं उसको अपने अमल दरामद करवाऊंगा अपने मंशूर के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि पंजाब भर में अंधेपन को रोकने और कंट्रोल करने का फैसला किया गया है। अंधेपन को रोकने और कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने मंसूबा बना लिया है। मंसूबे के मुताबिक लाहौर में टीचिंग अस्पतालों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद से। फैसल, ये बताइएगा, पंजाब भर में अंधेपन को रोकने और कंट्रोल करने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के शहरियों को हुकूमत पंजाब ने सहूलत देने के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया है। इस फैसले के मुताबिक लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में अंधेपन को रोकने और कंट्रोल करने के लिए एक मंसूबा बनाया गया है। मंसूबे का PC1 सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में मंजूरी के लिए पेश भी कर दिया गया है। मंसूबे के लिए कुल 1 अरब से जायद रुपए मुख्तस किए गए हैं जिनकी लागत आएगी। इससे पंजाब भर में आई यूनिट्स कायम किए जाएंगे। तहसीलों में जिला के लेवल पर आई यूनिट्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे और जदीद मशीनरी इक्विपमेंट मंगवाया जाएगा और इसको मॉनिटर करने के लिए लाहौर में 3 बड़े एक्सीलेंस सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, जिसका जो हेड ऑफिस होगा, जो कंट्रोल सेंटर होगा मेन, जहां से इक्विपमेंट्स को पूरे पंजाब में भेजा जाएगा जरूरत के मुताबिक, वो म्यू हॉस्पिटल लाहौर में लगाया जाएगा। म्यू हॉस्पिटल लाहौर में सबसे बड़ा एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें बाहर से मंगवाकर जो है जदीद इक्विपमेंट्स, आलात और अंधेपन को रोकने के लिए जितनी भी मेडिसिन है उनको जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ अहम इक़दाम है। आप हमें अपडेट कर रहे थे फैसल नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर लाहौर में हजारों रेडियो और तजावुजात के खात्मे के लिए 1592 रेडियो को 400 रुपए फीकस लाइसेंस जारी करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। आपको बताएं कि शहर लाहौर में हजारों रेडियो और तजावुजात के खात्मे के लिए 1592 रेडियो को 400 रुपए फीकस लाइसेंस जारी करने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। आपको बताएं कि शहर लाहौर में हजारों रेडियो और तजावुजात के खात्मे के लिए 1592 रेडियो को 400 रुपए फीकस लाइसेंस जारी करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। टाउन्स में मॉडल हथरेडियां भी लगाई जाएंगी। शहर लाहौर में हजारों रेडियो और तजावुजात के खात्मे के लिए यह इकदाम उठाया गया है। 1592 रेडियो को 400 रुपए फीकस लाइसेंस जारी करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। आपको बताएं कि मॉडल हथरेडियां भी लगाई जाएंगी, जबकि लाहौर में हजारों रेडियो और तजावुजात के खात्मे के लिए 1592 रेडियो को 400 रुपए फीकस लाइसेंस जारी करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान, ये बताइएगा कि मॉडल हथरेडियां लगाई जाएंगी अब? जी बिल्कुल जी, ये जो बल्दिया उस्मान का ये बड़ा मिसाली इक़दाम है और ये शहर में जितने भी तजावुज़ात हैं उनको खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा पहले, और फिर ये SOPs तैयार कर लिया गया है। इन SOPs को इस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन असम्बली में मंजूर भी करवाया जाएगा, मगर इस रेडी को ये रेडी का लाइसेंस उसी का बनेगा जो 18 साल से ज़ायद उम्र का होगा। 18 साल से कम उम्र का बच्चा इस रेडी का लाइसेंस नहीं ले सकता। और ये 2 तरह की रेडियाँ होंगी, एक पर फ्रूट बिकेगा और दूसरे पर खाने पीने की अशिया होंगी। और ये पूरे लाहौर के 9 टाउन है, 9 टाउनों में ये तकरीबन 1500 रेडी जो होगी वो मॉडल होगी, और जितनी भी बाकी रेडियाँ जो होंगी वो गैर कानूनी तौर पर तस्वुर की जाएंगी। उन रेडियों को फौरी तौर पर ये जब्त कर लेंगे और उनको वापस भी नहीं किया जाएगा, और जो रेडी लगा रहा होगा उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर जितने भी पूरे लाहौर शहर में जितनी भी रेडियाँ होंगी, अगर किसी 1592 रेडियाँ अभी तक यहाँ पर आई हैं, अगर इससे ज़्यादा तादाद होगी तो वो इससे जो जितनी भी ज़्यादा तादाद वो पहले उसकी हाउस से मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद एक ही दफ़ा 12 से दूसरे सेशन में उसकी मंजूरी लेकर दिया जाएगा। मगर इसके अलावा जितनी भी पूरे लाहौर में रेडियो लगेंगी उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा पहले, और उसके बाद इन रेडियो को पूरे लाहौर में निकाला जाएगा विद लाइसेंस। इनके ऊपर एक चिट लगाई जाएगी जिससे ये पता चलेगा कि ये मेट्रोपॉलिटन बल्दिया उज़्मा की तरफ से रेडियो लगाई गई हैं। पूरे लाहौर में जितनी भी गैर कानूनी तौर पर रेडियो होंगे उनको जब्त कर लिया जाएगा। जी, हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। आप हमें अपडेट कर रहे थे इमरान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करेंगे। बच्चा हवालगी केस की समाअत हुई है। बच्चों ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। अदालत ने मां को बच्चे राजी करने का वक्त दे दिया है। आपको बताएं कि मां के साथ जाने पर बच्चों ने इनकार कर दिया। बिल्कुल, आपको बताएं कि बच्चा हवालगी केस की समाअत, बच्चों ने मां के साथ जाने से इनकार किया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर शाकिर से। उमर शाकिर, बताइएगा कि किसकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अब्दुल अजीज चौधरी ने बच्चों की वालदा आफशा बीबी की दरख्वास्त पर केस की समाअत की और
दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि उसका शोहर जो है वो फौत हो चुका है और 3 बच्चों को जो है वो उनको दादी ने जो है इन पर कब्जा कर लिया और मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस पर अदालत ने जो है वो बच्चों से पूछा कि वो किन के साथ जो है वो जाना चाहते हैं, जिस पर बच्चों ने अदालत को बताया कि वो दादी के साथ ही रहना चाहते हैं। इस पर अदालत ने माँ को वक्त दिया कि वो बच्चों को अगर राजी कर सकती हैं तो राजी कर ले। आता है अदालत में इस दौरान जो है वो रिक्कत अमेज मुनाजिर देखने में आए। वालदा जो है वो बच्चों को हवालगी केस की समाअत हुई है। उमर शाकिर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। खान साहब ये बताइए कि जरदारी साहब ने कहा है कि फौजी अदालतों की वो रास्ता जो आपके दोस्त ने कहा है कि जो PSL में टीचर मीडिया टॉक है। देखें, इमरान खान साहब ने हमेशा जो है वो ना उन्हें अपने अल्फाज पे कंट्रोल होता है और ना ही उन्हें अपनी गुफ्तगू पे कंट्रोल होता है। वो हमेशा इंतहाई घटिया और तौहीन अमेज़ अल्फाज में अपने मुखालफीन के मुतल्लक जो है वो बात करते हैं, लेकिन जो उन्होंने PSL के मेहमानों के लिए ज़ुबान इस्तेमाल की है, उन्हें फटीचर और रेलू कट्टे कहा है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई तौहीन अमेज़ है। इमरान खान ने इससे पहले भी और अब भी जो है वो पूरी कौम के जज्बात को मजरूह किया है। PSL के मौके पे जहाँ पे 2 टीमों का मैच या क्रिकेट का फाइनल जो है, बात इससे आगे बढ़ चुकी थी। ये बात ऑन रिकॉर्ड है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये बात साबित है कि दहशतगर्दों ने PSL को हदफ बनाया था और इसके मतलब इंटेलिजेंस अलर्ट मौजूद हैं कि दहशतगर्दों का ये हदफ था कि इस मुल्क में जो है वो PSL ना हो, क्योंकि PSL के होने से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इम्प्रेशन बेहतर हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर जो क्रिकेट के दरवाज़े खुले हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट और रोशन चेहरा जो है वो यहाँ हुआ है। इसलिए जो है वो दहशतगर्द इसको निशाना बनाना चाहते थे और PSL की कामयाबी के लिए पूरी कौम पुरजोश थी। पूरी कौम ने जिस जज्बे का, जिस यकजहती का और जिस अज़म का इजहार किया, उसके सामने हर चीज़ जो है वो हेच हो गई और पूरी कौम ने ये साबित किया। और वहाँ पे स्टेडियम में वहाँ पे बच्चे भी, ख़वातीन भी और बूढ़े भी सब ये कहते हुए पाए गए कि हम यहाँ पे टिकट ख़रीद के इसलिए आए हैं कि हम दहशतगर्दों को बताना चाहते हैं कि हम दहशतगर्दों से नहीं डरते, हम दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। ये मैच जो है ये पाकिस्तान और दहशतगर्दी के दरमियान दहशतगर्दी के खौफ को मुस्तरद करने का जो है वो निशान बन गया था। पूरी कौम ने उसके ऊपर लब्बैक कहा, पूरी कौम ने उसके ऊपर खुशी का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान दुश्मन जो ज़बान PSL के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी कौम के इस जज्बे और जोश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे हैं, इमरान खान बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। इमरान खान ने क्रिकेट के मेहमान खिलाड़ियों के मतलब जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, ये हिंदू बनिए की ज़ुबान है, ये हिंदुस्तान की राह की ज़ुबान है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़ुबान है। और इस तरह से इमरान खान ने अपने हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद के ऊपर अपने आप को एक्सपोज किया है और उसने अपने आप को पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ जो है वो अलाई किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक है। मैं मुतालबा करता हूँ कि PTI में जो भी बाशऊर, मुहिब्बे वतन और समझदार लोग हैं, जिन्हें इस बात की समझ है, वो इमरान खान के इस बयान को मुस्तरद करें, इमरान खान से मुतालबा करें। पूरी कौम उनसे मुतालबा करती है कि वो अपने इस बयान को जो है वो वापस लें और इसके ऊपर पूरी कौम से माफ़ी मांगें। बात ये है कि ये सारे लोग जो हैं, ये सारे A ग्रेड के, A कैटेगरी के, A+ कैटेगरी के जो है वो प्लेयर्स हैं। और जब ये दुबई में खेल रहे थे तो ये ठीक थे,
اگر یہ پاکستان آ گئے تو یہ فٹیچر ہو گئے. یعنی بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے جس طرح سے یہ پہلے بھی متعدد بار کہا گیا اور پوری قوم اب سمجھ چکی ہے, پوری قوم اب عمران خان کا ایک ضدی بچے کا چہرہ جو ہے وہ پوری قوم پہ یہاں ہے. یعنی عمران خان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں سی پیک بنے نہ بنے, پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو نہ ہو, دہشت گردی ختم ہو نہ ہو, یعنی پاکستان آگے بڑھے, پاکستان ترقی کرے. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں, انہیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ انہیں اقتدار میں آنا چاہیے. لیکن آج کے اس بیان نے اور اس کے پہلے سے جو اس کا رویہ رہا ہے, اب اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اب عمران خان جو ہے اس ملک, اس قوم کا لیڈر نہیں ہو سکتا. اور وہ مراسی والی کہاوت ہے کہ وہ پورا گاؤں بھی مر جائے تو پھر بھی اس نے نمبردار نہیں بننا. اور اپنے قد کاٹ کے مطابق بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کا منہ نہ کھلوائیں, میرا خیال ہے کہ وہ منہ نہ ہی کھولیں تو اچھی بات ہے. ورنہ جس صورتحال سے جو ہے وہ اس وقت قوم دو چار ہے, اور یہ جو اس وقت دہشت گردی ہمیں درپیش ہے, اگر اس کی بنیاد پہ جائیں کہ یہ اس کو اوریجنیٹ یہ کیسے ہوئی تھی, وہ مجاہدین کیسے بنے تھے, اس وقت ڈالروں کی بارش کہاں پہ ہوئی تھی, اور وہ ڈالروں کو جو ہے وہ حلوہ سمجھ کے کون لوگ اس وقت سمیٹ رہے تھے, تو پھر یہ بات جو ہے یہ واقعی ڈاکٹر وسیم صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ بات دور تک جائے گی. لیکن جب دور تک جائے گی تو پھر ان کے گھر تک ہی جائے گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ مناسب یہی ہے کہ وہ زبان نہ کھولیں تو بہتر ہے. لیکن مولانا سراج الحق صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں, وہ بھی گفتگو جو ہے اس میں جو ہے وہ شائستگی لائیں, اور وہ بھی جو ہے وہ اپنی سیاست میں جو ہے وہ کم از کم کچھ نہ کچھ رکھ رکھاؤ کا جو ہے نا وہ کام کریں. ایک طرف ایک کے الائی ہوتے ہیں, دوسری طرف دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. یعنی ان کا آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اور کس کے وہ خلاف ہے. تو کم از کم اپنی سیاست میں یہ جو ہے وہ کلیئرٹی تو انہیں لانی چاہیے. رانا صاحب یہ کیسے ہوگا کہ جماعت اسلامی تو ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سیٹیں جیت رہی تھی, اب آپ کے سامنے کھڑی ہوگی؟ نہیں تو اب بھی کون سی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. آزاد کشمیر میں ہمارے ساتھ ان کا الائنس تھا, پاناما میں ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس ہے. اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ وہ ان کا حال جو ہے وہ کسائی کی چھری جیسا ہے, جو حلال پہ بھی چلتی ہے حرام پہ بھی چلتی ہے. رانا صاحب یہ جو فوجی عدالتوں کی تجاویز دی ہیں آصف علی زرداری صاحب نے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جو تجاویز میں جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سن سکا ہوں, انہوں نے شاید یہ کہا ہے کہ فوجی عدالتیں قائم کی جائیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال کی بجائے 1 سال کی بات کی ہے, اور دوسرا شاید جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ایڈیشنل سیشن ججز کو بٹھایا جائے, اور پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ سنیں. دیکھیں اس میں میری پارٹی کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ میری پارٹی جو ہے وہ 3 سال کی جو ہے وہ توسیع کرنا چاہتی تھی, اور 2 سال پہ جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے, اور وہ اسی شکل میں توسیع چاہتی ہے جس شکل میں فوجی عدالتیں پہلے تھیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتیں اگر قائم کرنی ہی ہیں, اور ان کی ضرورت جو ہے وہ اس لیے محسوس کی جا رہی ہے کہ غیر معمولی حالات میں یہ غیر معمولی اقدام اٹھایا جائے, تو اگر غیر معمولی اقدام میں حالات میں غیر معمولی اقدام اٹھانا ہے تو پھر اس اقدام کو جو اس کی ایک اوریجنل پوزیشن ہے اس میں اٹھایا جائے. فوجی عدالت اس لیے قائم ہوتی ہے کہ ججز کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایکسپوز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ فوجی عدالت میں کیس آج گیا, ودن 1 ویک فیصلہ ہوا, اور اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس اپیل گئی, ودن 2 اور 3 ڈیز جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا, اور 2 ہفتوں میں جو ہے وہ سزا کے اوپر کوئی بھی جو اگر بری ہے تو آدمی اپنے گھر جائے, اور اگر اس کی سزا ہے تو وہ اپنی سزا بھگتے, ایگزیکیوشن ہو. لیکن اگر فوجی عدالت کے فیصلے نے بعد میں 2 سال تک اپیلوں میں رہنا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتیں پھر غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدام والی بات جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور جو تجویز ہے محترم
आसफ जरदारी साहब वाली, उसमें मैं नहीं समझता कि वो अदालतें वो नाम की फ़ौजी अदालतें होंगी, लेकिन उनका काम जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो हम उससे मंसूब करते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा कि सिर्फ आप नाम की जो है वो फ़ौजी अदालतें बना दें। राना साहब, डिफेंस धमाके की अभी तक तहकीकाती रिपोर्ट आपने कहा था कि बस 1-2 दिन तक आ जाएगी, लेकिन 2 हफ्ते होने के है और अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा सिलेंडर। नहीं, देखिए वो कंफर्म है। डिफेंस वाला ब्लास्ट जो है उसकी नोवियत के तयन से मुतल्लक जो है कोई तफ्तीश नहीं हो रही, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। वो तफ्तीश इंक्वायरी जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट ने करनी। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज उन्होंने हदफ तनकीद बनाया इमरान खान को। उन्होंने कहा कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने जमात इस्लामी को भी हदफ तनकीद बनाया और उन्होंने कहा कि अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और यहाँ पे आपको हम खबर से आगाह करें कि लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में शैडो काबीना बनाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अशफाक। जी मोहम्मद अशफाक, इस केस की समाअत के हवाले से मजीद बताइएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आतिर महमूद ने अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत के रूबरू अपोजिशन लीडर की जानिब से शराज का एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला पंजाब हुकूमत जो है वो शैडो कैबिनेट नहीं बना रही, जो कि आइन और कानून के वाज़ेह खिलाफवर्जी है, जबकि पंजाब जैसे बड़े सूबे में शैडो कैबिनेट का होना अशद जरूरी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आतिर महमूद ने इब्तदाई दलाइल मुकम्मल होने के बाद दायर दरख्वास्त फैसला महफूज कर लिया है, जो कि कल सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर है, पीटीआईबी और महकमा एक्साइज के मुश्तरका प्रोजेक्ट DVRS के तहत पंजाब में 17,000 से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कर ली गई है। DG SRU सलमान सूफी का कहना है कि लाहौर में 5,550 गाड़ियां रजिस्टर्ड की गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान, ये बताइएगा 17,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की गई है। जी बिल्कुल, ये डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। ये एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है महकमा एक्साइज और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसके तहत शहर में 23 टोटल शोरूम्स है, जिनसे 17,000 से ज्यादा गाड़ियों को रजिस्टर किया जा चुका है। इस सिस्टम से फायदा ये है कि इसमें करप्शन माफिया जो है, करप्ट माफिया, उसका खात्मा मुमकिन किया जाए। जो शहरी किसी एजेंट के थ्रू गाड़ी रजिस्टर करवाते हैं, वो इस सिस्टम के तहत गाड़ी रजिस्टर करवा सकेंगे। और लाहौर में गाड़ियां रजिस्टर्ड की गई हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे ज़ीशान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। मेयर लाहौर की हदायत पर गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दातागंज बख्श टाउन, अजीज भट्टी टाउन और शालामार टाउन ने ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तजावुजात कब्जे में ले ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा कि गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। बिल्कुल जी, आज ये मेरे लाहौर का रिटायर मुबशर जवेद ने ये 3 टाउनों का दौरा किया और यहाँ से गुजरते हुए जितने भी बैनर और स्टीमर्स के गैर कानूनी बैनर और स्टीमर लगे हुए थे, यहाँ पे उन्होंने फौरी तौर पर इनको उतारने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि शहर का हुस्न जो है वो दोबारा रहना चाहिए, मादन दिन बनना चाहिए और जितने भी तजावुजात थे उनके खिलाफ भी ऑपरेशन करवाया गया है। वहाँ पे 5 ट्रक सामान इन 3 टाउनों ने जब्त कर लिया और अपने स्टोर्स में भिजवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ LDA की बात करेंगे। LDA में तकर्रुर तबादले। LDA लॉ डायरेक्टरेट के डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की तकर्रियां, 4 डिप्टी और 12 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की तकर्रियों के अहकामात जारी कर दिए गए। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, इन तकर्रुर तबादलों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 रोज कबल लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर एडमिन में तमाम शोबा जात में जो डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे, उनकी खिदमात वापस लॉ डायरेक्टरेट के हवाले कर दी। ताहम आज डायरेक्टरेट ऑफ लॉ की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 4 डिप्टी डायरेक्टर्स और 12 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तबादले मुख्तलिफ डायरेक्टरेट में कर दिए गए हैं। इनमें डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शफीक का तबादला डैम एवेन्यू 1 में किया गया है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल रज़ाक का जो तबादला है उनका मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग में किया गया है, जबकि उनको प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का भी इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इसी तरह LDA में तकर्रुर तबादले के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे शेख ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि लाहौर हाईकोर्ट में नैब रेफरेंस से वज़ीर आज़म और शरीफ खानदान की बर्रियत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुताल्लिका दस्तावेजात साथ लगाने की हिदायत कर दी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक, आगाह कीजिएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने शहरी महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत के रूबरू दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये बताया गया कि
एहतसाब अदालत ने शरीफ खानदान को नैब से बरी किया, लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन नैब ने इस मामले पर अपील दायर नहीं की, जिससे उनकी बदनीति साफ जाहिर हो रही है। लिहाजा अदालत अपील दायर करने का हुक्म जारी करे। इस मौके पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरख्वास्त गुजार को मुतलका दस्तावेजात साथ लगाने का हुक्म देते हुए मजीद कार्रवाई 27 मार्च तक मुलतवी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नादरा की जानिब से शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और गैर मुल्की जाहिर करने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। नादरा को रकम की अदायगी में ताखीर के बायस इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर शाकिर से। उमर शाकिर, ये बताइएगा कि दरख्वास्त गुजार ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है? जी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आतिर महमूद ने शेर अली की दरख्वास्त पर केस की समाअत की और दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि नादरा की जानिब से जो है वो इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और अदालत के रूबरू ये बताया गया कि नादरा फ्रेंचाइज बिजली के बिलों की वसूली रिपोर्ट के लिए पेश करने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर। खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।